پارٹی کے جنرل سیکرٹری محبوب بیگ صاحب, حمید کوشین صاحب, پرویز صاحب, انجم فاضلی جی, محی الدین صاحب, بے خاص کر یہ سانی پارٹی مزمو تشریفن عبد المجید میر صاحب یہاں بھی استقبال چھس کرن بے تمن سے تو نوجوان بزرگ ساتھی میں السلام علیکم. مجھے بڑا خوشی آج آئی یہ ساری سانی پارٹی مز کیازِ بہٕ ٲسٕس یِمن تی ونان ہر کن محبوب بیگ صٲبس بہٕ ٲسٕس دپان آز PDP یس منٛز یُن چھُنہٕ سہل کینٛہہ اتھ چھِ ونان کٲشِر پٲٹھۍ ننگہٕ تارِ اتھ لاگُن کیازِ یِم حالات چھِ یتھ جموں کشمیرس منٛز ونکیٚنس یِم معاملات چھِ تِمو چھُ ییٚتکٮ۪ن لُکن دم کوٚرمُت کانٛہہ چھُنہٕ ہٮ۪کان کتھ کٔرِتھ کانٛہہ چھُنہٕ ہٮ۪کان بات کٔرِتھ حالات چھِ امہِ قٕسمٕکۍ اَسہِ اوس خیال ہوم منسٹری آف انڈیا سُہ یی یور ییٚتہِ گژھِ تھوڑا سا تفاوت ییٚتہِ گژھِ نرمی مگر تٔمۍ سٕنٛدۍ یِنہٕ پتہٕ گٔے زیادٕ سختی مےٚ چھُنہٕ زیادٕ تۄہہِ تقریر کرنٕچ ضروٗرت کینٛہہ عبد المجید میر صٲبن محبوب بیگ صٲبن غلام نبی لون صٲبن ووٚنوٕ تۄہہِ سورُے سٹوری مےٚ چھُ یُتُے وَنُن کہِ وٕنکیٚنس چھِ اَسہِ تُہنٛز ضروٗرت عوامٕچ ضروٗرت عبد المجید میر صٲبن لُکن ہٕنٛز ضروٗرت کیازِ ونکیٚس چھُ کٲشُر قوم جموں کشمیرٕکۍ لُکھ پتھر پیٚمٕتۍ اکھ گوٚو نا پلو کڑُن پتہٕ گوٚو سڑکہِ منٛز حظ کھڑا کرُن أمِس مار دیُن تی چھُ ونکیٚس جموں کشمیرٕچ حالت کانٛہہ چھُنہٕ ہٮ۪کان شاہ کٔرِتھ کانٛہہ چھُنہٕ ہٮ۪کان کتھ کٔرِتھ اوترٕ آو ہوم منسٹر ساسہٕ بدی نوجوان واتنٲیِکھ آگرا تہٕ بیٚیہِ باقٕے جیلن منٛز تمہِ پتہٕ گوٚو پٲکستانُک کرکٹ میچ سٲنۍ یِم بچہٕ کالجن منٛز یونیورسٹین منٛز پران چھِ نیبرٕ چاہے آگرا چھِ یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ چاہے ییٚتہِ تِمن کٔرِکھ کیس کیٛاہ سا تۄہہِ کیازِ کوٚروٕ ژرِ پوٚپ اگر پٲکستانن زیوٗن یہِ چھُ یِمن پانس سنُن کہِ ییٚتیُک نوجوان کیازِ چھُ پٲکستانس ژرِ پوٚپ کران اتھ کتنس چھِ غلطی یہِ دود کتنس چھُ اتھ چھا علاج اگر کٲنٛسہِ ژاس آسہِ تٔمِس تھاوو ٲسس تھوٚپ دِتھ دپو أمِس گٔے ژاس ٹھیٖک کِنہٕ اتھ ژاسہِ چھُ علاج کرُن تہِ چھُنہٕ یِمن کینٛہہ یِم چھِ دپان ییٚتہِ ہسا گوٚو پتھراو بنٛد ییٚتہِ گٔے فلٲنۍ چیٖز بنٛد ییٚتہِ گٔے حالات ٹھیٖک مگر پتہٕ ییٚلہِ اوترٕ ہوم منسٹر آو ییٚتہِ ییٚلہِ رات کیُتھ وٕچھُن بدل ماحول تٔمِس توٚر فِکرِ کہِ جموں کشمیرس منٛز یہِ مےٚ وننہٕ چھُ یِوان دِلہِ منٛز ییٚتہِ ہسا گوٚوٕے سورُے ٹھیٖک سورُے گوٚو نہٕ ٹھیٖک کینٛہہ مگر تمہِ پتہٕ ٲس یِمن ضروٗری یہِ سونٛچُن کہِ اگر حالات خراب چھِ یِم کِتھ کٔنۍ کرو ٹھیٖک یِم ہٮ۪کو نہٕ أسۍ CRP بٹالین سوٗزۍ سانٮ۪ن میریج ہالن منٛز سانٮ۪ن ہسپتالن منٛز چھِ ونکیٚس بران یِمن بلڈنگن منٛز چھِ بران کٲشِر پٲٹھۍ نقوارٮ۪ن منٛز چھِ ونکیٚس بران یِم سِکیورٹی فورسز کٲشرِس امہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ ییٚتہِ 10 لچھ فوج گامہٕ گامہٕ جایہِ جایہِ آز گٔے 30 ؤری یِمن لڑان کٲشرٮ۪ن سۭتۍ مگر کامیٲبی گٔیکھ نہٕ کینٛہہ اگر کامیٲبی گٔمٕژ آسہِ ہا تیٚلہِ اوس نہٕ ونکیٚس فوج ییٚتہِ تھاونٕچ ضروٗرت کینٛہہ تیٚلہِ ٲس نہٕ CRP اننٕچ ضروٗرت کینٛہہ کامیٲبی گٔیے اکی ساتہٕ ییٚلہِ مفتی محمد سعید صٲب ییٚتہِ ٲسۍ اٹل بِہاری واجپایی دِلہِ منٛز اوس تمہِ ساتہٕ گٔیے پٲکستانس سۭتۍ تہِ کتھ باتھ تمہِ ساتہٕ گٔیے ییٚتہِ سیپریٹسٹن سۭتۍ تہِ کتھ باتھ حالات گٔیے ٹھیٖک پتہٕ گٔیے یلہٕ ییٚلہِ حالات گٔیے ٹھیٖک امُن گٔیو کالیج تہِ بنیے سڑکہٕ تہِ بنیے رہبر تعلیٖم نوجوان لاگے مفتی صٲبن ساسہٕ بدی گرٕ واژاے آڈر مگر سُہ اوس تیٚلے ییٚلہِ امُن گٔیو مفتی صٲبس ٲس سۄے کتھ یاد أمِس اوس پتہ یُس نریندر مودی چھُ یہِ ہسا آو واجپایی نہِ جایہِ یۄس کتھ مےٚ 2004 منٛز شروٗع کٔر مودی پکنایہِ سۄے کتھ برونٛٹھ یہِ کرِ پٲکستانس سۭتۍ کتھ یہِ کرِ ییٚتکٮ۪ن لُکن سۭتۍ کتھ یُس پروسیس مےٚ شروٗع اوس کوٚرمُت سُہ واتناوو انٛدس تام اتھس بیٚیہِ ووٚن پوٚز صحیح ووٚن محبوب بیگ صٲبن تٔمۍ ہیوٚت تِمن گۄڈنیٚتھٕے لیٖکھِتھ یِن 3 ہتھ 7 اتھٕ لٲگِو ظاہر ہے کہ پچھلے 1 سال سے کسان سڑکوں پہ ہیں کئی لوگ ان میں جو ہے شہید ہو گئے کئی لوگوں نے خودکشی کر لی پر اس کے باوجود جو مرکزی سرکار ہے ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے تو یہ گھمنڈ نہیں ہے غرور نہیں ہے تو اور کیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر چیز کا اپنا وقت ہوتا ہے یہ وقت بھی نہیں رہے گا آخرکار جو ہے جس طرح سے کسان اس وقت ناراض ہیں جس وقت سے وہ اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں مجھے پوری امید ہے اور جو ابھی حال ہی میں رزلٹ آ گئے کئی اسٹیٹس کے
कि आने वाले वक्त में लोग जो है अपनी नाराज़गी का इजहार करेंगे और जो बीजेपी की सरकार है उनको भी होश के नाखून लेना पड़ेगा। मैम, अगर जम्मू कश्मीर और सेंट्रल पॉलिटिक्स को लेकर बात करें, कल निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत सुधर रहे हैं। उन्होंने कंपैरिजन दिया है यूपीए 1 यूपीए 2 गवर्नमेंट और भाजपा गवर्नमेंट के दौरान हुई किलिंग्स की, सिविलियन किलिंग्स की। उसके बाद उन्होंने और भी जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स है उनको लेकर बात की, एक विधान एक निशान एक प्रधान की बात की, और कहा कि जम्मू कश्मीर की जो पुरानी सरकारें हैं वो जो नहीं कर सकी वो भाजपा ने पिछले 2014 से लेकर 18-21 तक करके दिखाया है। देखिए, मैं क्या कहूँ, मुझे तो हंसी आ रही उनकी इस बात पे, क्योंकि अभी होम मिनिस्टर आए तो होम मिनिस्टर के आने से पहले यहाँ हज़ारों नौजवानों को कैद किया गया, बंद किया गया। उसके जाने के बाद और लोगों को बंद किया गया। आज तक भी वो सिलसिला जारी है। सीआरपीएफ की नई नई बटालियंस रोज़ बरोज़ आ रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। तो अगर हालात ठीक है तो फिर ये सीआरपीएफ की बटालियन सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई जा रही है? और कल ही हमारा एक पुलिस का आदमी जो है उसको शहीद किया गया। तो मेरा ये है कि इनको बीजेपी को जुमलाबाजी करने की आदत है। ये हर में कह रहे थे कि लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए दे देंगे, 2.5 करोड़ नौकरियां देंगे साल में, और बाद में कहा ये तो सब जुमला है। तो ये जो बात करते हैं उसमें कोई वज़न नहीं होता है, बिल्कुल गलत होता है। जम्मू कश्मीर के ज़मीनी हालात बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत ख़राब है। यहाँ के लोगों का दम घुट रहा है। यहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते पे उनको खामोश करवा दिया गया है, और यहाँ की खामोशी को ये अमन का नाम दे रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। जी 5 साल हो गए नोटबंदी को, आज 5 साल ठीक इस वक्त, आज 5 साल पहले, तो 5 साल का एक्सपीरियंस नोटबंदी का। नहीं, देखिए, वो कह रहे थे नोटबंदी से जो है काला पैसा वापस आ जाएगा, जो है जो वायलेंस है वो ख़त्म हो जाएगी और दूध की नदियाँ बहेंगी, फिर लोगों को पता नहीं क्या इससे मिलेगा, सारा करप्शन ख़त्म हो जाएगा। बल्कि इस वक्त तो पहले जितनी करप्शन कभी नहीं थी अब है, मगर बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से करप्शन हो रही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, वो करप्शन नहीं है तो क्या है? जिसका आप लोगों को हिसाब नहीं देना चाहते। बहैसियत प्राइम मिनिस्टर आपके पास फंड है, आप उसमें जो है अरबों खरबों रुपया जमा है, उसका आप हिसाब नहीं, तो इससे बड़ी करप्शन क्या हो सकती है? मैम, आपने भी प्राइम मिनिस्टर फंड की बात की, 37 वेंटिलेटर्स एसएमएस में पहुंचे थे, वो डिफंक्ट है सारे, उसके आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा यही न सिर्फ यहाँ जो वेंटिलेटर पहुंचे वो डिफंक्ट थे, बल्कि जो गुजरात में भी वेंटिलेटर थे और जगहों पे भी थे वो डिफंक्ट थे। तो मैं कहती हूँ सबसे बड़ा गपला जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स केयर फंड में है। अभी अगर देखा जाए काफी ज्यादा ऐसे मुलाजिमों को अभी सैक किया गया है, जिसमें पिटी थिंग्स पर उनको निकाला गया है, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। मैं वही तो कह रही हूँ कि एक तरफ से एक दावा करते हैं जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, दूसरी तरफ से ऐसे इकदाम करते हैं जिनसे यहाँ के लोगों के, अभी बिजबिहाड़ा में 2 लोगों को इन्होंने नौकरी से हटा दिया, उससे पहले यहाँ हटा दिया, पूरे कश्मीर में वादी में, और उसके बाद 48 साल की उम्र में भी कई लोगों को जो है उनको रिटायर कर दिया, नौकरियों से निकाल रहे हैं। ना कोई अदालत है, ना कोई वकील का डिस्कशन है। खुद ही वकील, खुद ही जज, खुद ही वकील और खुद ही सज़ा सुनाते हैं, जो बहुत गलत है। इस सब की जो नतीजे, बेशक इस वक्त इन्होंने ताकत के बलबूते पे इस वक्त लोगों को खामोश कर दिया है, तो ये वक्त नहीं रहेगा ऐसा। एक वक्त आएगा कि इनके जो नताए जो ये इस वक्त कर रहे हैं, जो ये सख्ती कर रहे हैं, जो इन्होंने सबका मुंह बंद करके रखा हुआ है, किसी को बात नहीं करने देते हैं, यूएपीए सेडिशन चार्जेस किसे लोगों को तंग कर रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, जिसका मेरे ख्याल में इजाला करना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त ये कहेंगे हम कश्मीरियों से बात भी करेंगे, हम उनके साथ भी बात करेंगे, मगर तब बहुत देर हो गई होगी और मुल्क को इसका बहुत बड़ा खिमियाजा उठाना पड़ेगा। जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कंपनीज यहाँ पे लाई जा रही है, दूसरी तरफ से कह सकते हैं कि लाल चौक के कुछ कदम दूर ही कल एक पुलिस ऑफिसर को बिल्कुल बटमालू में बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है? नहीं, सिक्योरिटी तो लैप्सेस हैं, क्योंकि वो जो हमारे जो माइनॉरिटीज़ के लोग भी मारे गए, उनके पास इंफॉर्मेशन थी सरकार के पास कि माइनॉरिटीज़ को अटैक किया जाएगा, उसके बावजूद वो लोग मारे गए। कल वो पुलिस वाला जो बटमालू का वो वहाँ मारा गया। तो ये तो सीधे जो है इनका जो है नाकामी है। अब फ्रस्ट्रेशन में आके ये लोगों पे, मैंने पहले भी कहा, मुझे डर ये है जब हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग मारे गए, मुझे ये डर है कि ये सब का गुस्सा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों पे उतारेंगे और सख्ती करेंगे और फोर्सेस लाएंगे और काले कानून यहाँ नाफिज करेंगे, जैसे SIA, UAPA, NIA, ED,
पता नहीं क्या क्या PSA होने के बावजूद अब SIA दूसरी एजेंसी लाई इन्होंने। तो गर्ज ये है कि लोगों को तंग करना है, लोगों को किसी किस्म का आराम नहीं देना। जैसे मैंने अभी कहा, वो बेचारा वो शाहिद राथर, वो लड़का जो आर्मीनी का रहने वाला है, यहाँ शुपियन में मारा गया, वो जैनपुरा शुपियन में, और आज तक सरकार की तरफ से उस बेचारे गरीब के घर कोई नहीं गया है, मुझे भी नहीं जाने देते हैं, ना खुद जाते हैं। उसको अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन की बात तो दूर की है, जिस तरह वो मारा गया, मगर कोई उसके घर दो लफ्ज़ जो है हमदर्दी बोलने के लिए नहीं गया सरकार की तरफ से। तो यही तो हाल है पूरे जम्मू कश्मीर का। ज्वाइनिंग को लेकर आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा मैम। आपने एक सवाल पूछ लिया। मैम, पहले PDP को निशाना बनाया गया था, अब NC की बारी आ रही है, जो पार्टियों को तोड़ फोड़ किया जा रहा है, तो इसमें आप क्या? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, या तो ब्लैकमेल चलता है या तो लालच चलता है। ज़्यादातर ब्लैकमेल करते हैं, लोगों के खिलाफ उल्टे फुल्टे केसेस निकाल के उनको धमकाते हैं, उनको जो है डराते हैं, उनको या तो कहते हैं या जेल जाओ या इस जमात में जाओ, या जेल जाओ या उस जमात में जाओ। तो आपने देखा होगा कई लोग जेल से निकले, उनने जमात ज्वाइन की तो उनके केस ख़त्म हो गए। तो अभी इसी तरह से जो नए लोग हैं उनको भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, किसी को लालच भी दी जा रही है कि आप, क्योंकि ये समझते हैं कि यहाँ नई पार्टीज़ बनानी है, तो उसमें PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस इनको बहुत बड़ी रुकावट नज़र आ रही है, इसलिए इन्हीं दो पार्टीज़ की तोड़फोड़ कर रहे हैं। मैम, इसी का एक्सटेंशन एक आपसे जानना चाहूंगा कि इन्हीं सर्कमस्टांसेस में लोग आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, लोगों का जो पर्सपेक्टिव चेंज आप देख पा रहे हैं ऑन फील्ड, उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, लोगों को जो इस वक्त PDP ज्वाइन करना आसान बात नहीं है। आपको मालूम है कितने मुश्किलात में हम, कितना दबाव है सरकार का हमारी जमात के लोगों के ऊपर, मगर लोग समझते हैं कि जम्मू कश्मीर की अगर आवाज़ को ज़िंदा रखना है, अगर यहाँ के जो इस वक्त बिल्कुल दम घुटता है लोगों का, अगर उनकी आवाज़ बनना है, तो PDP वाहिद वो जमात है जो इस रिस्क को उठाने के लिए तैयार है। और इसीलिए मुझे खुशी है आज हमारे एडवोकेट मजीद मीर साहब, इन्होंने शांगत से हमें ज्वाइन किया। इसी तरह रोज़ कोई ना कोई ज्वाइनिंग होती है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि PDP की आवाज़ को मजबूत करें, ताकि आने वाले वक्त में जो मुश्किलात में जम्मू कश्मीर फंसा है, इससे बाहर निकला जाए।